We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Good morning everyone. Today we are going to learn about unsymmetrical fault. So first of all, what is unsymmetrical fault? There are 2 type of fault, symmetrical fault and unsymmetrical fault. So unsymmetrical fault means after the fault, voltage and current are unbalanced condition. It is known as a unsymmetrical fault. So before the fault, the voltage and current are balanced, and after the fault, voltage and current are unbalanced condition, that is known as a unsymmetrical fault. So different type of unsymmetrical fault. First is line to ground fault. So first is line to ground fault. Here we consider the 3 phase A, phase B and phase C. If any one line and ground are short circuited, it is known as a line to ground fault. 70% fault occurs line to ground fault. Second one, line to line fault. 2 line are short circuited. It is known as a line to line fault. And third one, double line to ground fault means if any 2 line and ground are short circuited, it is known as a double line to ground fault. So different type of fault. So in unsymmetrical fault, line to ground fault, line to line fault and double line to ground fault. Today we are going to start line to ground fault. So here we consider one circuit. We consider one synchronous machine circuit. So this one is synchronous machine circuit. It is connected to star connection. So neutral point is here. Phase A induced EMF, that is EA, phase B induced EMF, that is EB, and phase C induced EMF is EC, and star connected. So neutral point is here. Then Zn is neutral impedance. Now phase A में से जो करंट पास होता है दैट इज IA करंट, फेज बी में से जो करंट पास होता है दैट इज IB करंट, एंड फेज सी में से जो करंट पास होगा दैट इज IC करंट. हियर वी कंसिडर दिस सिंक्रोनस मशीन इज कनेक्टेड विच इज़ अनलोडेड कंडीशन. यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं सिंक्रोनस मशीन वो अनलोडेड कंडीशन पे है. सो in for line to ground fault, we have take some assumptions. So before fault, all the current IA, IB and IC is equal to 0 means current are balanced. Second one, VA, VB and VC are balanced condition. So voltage and current are balanced condition. At no load, VA is equal to EA, VB is equal to EB and VC is equal to EC, line to neutral voltage. So before that is first assumption, before the fault voltage and current are balanced. Now we create some fault. Suppose we have to take phase A पे से हम fault create करेंगे which is line to ground fault. So phase A and ground are short circuited, so line to ground fault is occurs. तो उसी टाइम पे हमें इम्पीडेंस मिलेगा ZF इज़ फॉल्ट इम्पीडेंस, और उसमें से जो फॉल्ट करंट पास होगा वो है IF. सो आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन IA इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके, बट स्टिल IB एंड IC इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि IB और IC पे हमने कोई भी फॉल्ट नहीं किया. हमारा फॉल्ट जो क्रिएट होता है वो IA पे होता है. सो IA
is not equal to 0 and voltage VA, VB and VC are unbalanced. So we have easily find the VA. हम यहाँ पे से VA easily find कर सकते हैं. VA क्या होगा हमारा, VA is equal to IF into ZF. और IF क्या है, IF जो IA है वही हमारा IF है. सो IF इज इक्वल टू IA. सो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, VA इज इक्वल टू IF इंटू ZF. सो IA हमारा क्या है, IF हमारा नेट करंट है. ओके, दैट इज़ नॉट इंडिविजुअल फेस करंट, दैट इज़ नेट करंट. सो IA इज इक्वल टू IA0, IA1, IA2. 0 मीन्स जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट. सो हमें आफ्टर द फॉल्ट क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और ज़ीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करना है. वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सो बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स में से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं IA0, IA1 एंड IA2. तो सिंपल, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे IA0 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. सो 1 इंटू IA, यहाँ पे हमारा क्या होगा, IA, IB और IC होगा. IB हमारे पास क्या है, 0 है. IB इज इक्वल टू 0, IC इज इक्वल टू 0. ओके, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू IA. सो IA0 इज इक्वल टू सिंपल 1 इंटू IA. तो क्या मिलेगा, IA मिलेगा. 1 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 0 0. सेकंड, सो 1/3 इज एज इट इज. सो IA0 हमें क्या मिलेगा, IA0 इज इक्वल टू IA डिवाइड बाई 3. Similarly find IA1. IA1 is equal to 1/3 second row and first column, 1 into IA, that is IA, alpha into 0 0, alpha square into 0 0. So यहाँ पे भी हमें IA/3 ही मिलेगा. IA2 is equal to third row and first column, 1 into IA, alpha square into 0, alpha into 0. तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, IA/3 ही मिलेगा. उसका मतलब क्या हुआ कि IA0 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IF/3, क्योंकि IF क्या है, IA है. ओके, तो ये इक्वेशन से हमें क्या रिप्रेजेंट होगा कि ज़ीरो सीक्वेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस, और IF इज इक्वल टू 3 टाइम्स IA0 हम लिख सकते हैं. सो फॉल्ट करंट, फाइनल फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ज़ीरो सीक्वेंस करंट. ज़ीरो सीक्वेंस करंट मीन्स जब भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो उसमें ज़ीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट रहेगा. ओके, मीन्स ग्राउंड हमारा प्रेजेंट रहेगा और उसमें जो करंट फ्लो होगा वो 3 टाइम्स हायर होगा. ओके, अब हम उसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं. तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए पहले हम सर्किट देखते हैं. तो IB और IC पे कोई फॉल्ट नहीं होता है. तो IB और IC हमारा अभी एक्टिव नहीं है. ओनली हमारा एक्टिव फेस कौन सा है, IA ही एक्टिव है. तो हम ये दो फेस निकाल देंगे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए. ओनली वन फेस रहेगा, दैट इज़ IA फेस. ओके, सो हम ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे अभी. सो फर्स्ट ड्रॉ 3IA0, उसका इम्पीडेंस, न्यूट्रल इम्पीडेंस ZN. उसके बाद हमें ड्रॉ करना है पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और ज़ीरो सीक्वेंस. अभी हमारा हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है उसमें 3 करंट हमें क्या मिलता है, इक्वल मिलता है. IA0 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2 मिलता है. सो इट मीन्स करंट आर इक्वल, करंट आर इन सीरीज. सो पॉजिटिव सीक्वेंस सिंक्रोनस मशीन में पॉजिटिव सीक्वेंस जब भी हम ड्रॉ करेंगे उसमें EMF सोर्स रिप्रेजेंट करना है. नेगेटिव सीक्वेंस और ज़ीरो सीक्वेंस में EMF सोर्स ड्रॉ नहीं करना है. सो EA1 इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z1 और उसमें जो करंट फ्लो होगा IA1. नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस में जो करंट फ्लो होगा IA2 और ज़ीरो सीक्वेंस में जो करंट फ्लो होगा IA0. और हमारा फॉल्ट इम्पीडेंस है ZF है और उसमें जो करंट पास होगा दैट इज़ 3IF. तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें करंट तो सीरीज़ में है, करंट सीरीज़ में इक्वल होता है. ओके, सो यहाँ पे हमारे करंट वैल्यू चेंज होती है. सो हम ये सर्किट को क्या करेंगे, अगेन मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई कैसे करेंगे, सिंपल VA
इज इक्वल टू आई एफ इंटू जेड एफ। आई एफ हमने क्या फाइंड किया 3 इंटू आई ए ज़ीरो, सो आई ए ज़ीरो इन ब्रैकेट 3 जेड एफ भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो 3 आई ए ज़ीरो, दिस आई ए 3 को हम 3 जेड एन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई ए ज़ीरो एज इट इज़ रखेंगे, ये इसका 3 जो है हम 3 जेड एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इन फॉल्ट करंट 3 आई एफ है, उसका जो 3 है वो हम जेड एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा 3 जेड एफ और 3 जेड एन हो जाएगा, और करंट हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। करंट इक्वल हो जाएगा मीन्स करंट अब हमको सीरीज़ में मिल जाता है, मीन्स we get the equation IA0 is equal to IA1 is equal to IA2। उसके हिसाब से अब हमारी सर्किट राइट है। ओके, अभी ये सर्किट में हम क्या करेंगे, सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो ओम्स लॉ, IA0 is equal to IA1 is equal to IA2 is equal to I इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सोर्स दैट इज ई ए वन डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड ज़ीरो प्लस 3 जेड एन प्लस 3 जेड एफ, दैट इज अवर टोटल इम्पिडेंस। ओके, सो सिंपल जेड ज़ीरो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जेड ज़ीरो प्लस 3 जेड एन, इसको हम जेड ज़ीरो इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो जेड ज़ीरो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जेड ज़ीरो प्लस 3 जेड एन। सो ई ए वन डिवाइड बाई जेड वन इक्विवेलेंट, जेड टू इक्विवेलेंट, जेड ज़ीरो इक्विवेलेंट एंड प्लस 3 जेड एफ। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जेड एफ मीन्स दैट इज़ फॉल्ट इम्पिडेंस एंड जेड एन मीन्स न्यूट्रल इम्पिडेंस। ओके, दोनों इम्पिडेंस सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। एफ का इम्पिडेंस चेंज है, एन का इम्पिडेंस भी, न्यूट्रल का इम्पिडेंस अलग है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनल आई एफ इज़ इक्वल टू 3 आई ए ज़ीरो, यहाँ पे हम आई ए ज़ीरो की वैल्यू रख देंगे, तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा 3 आई ए वन डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड ज़ीरो प्लस 3 जेड एन प्लस 3 जेड एफ, बट दिस इक्वेशन आर इन पर यूनिट इक्वेशन। Okay, so that is not our actual value, so this value is convert into the actual value by using this equation IFA is equal to IF per unit into MVA divided by रूट 3 into VL। तो ये इक्वेशन अप्लाई करके हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, उससे हमें क्या मिलेगा पर यूनिट में मिलेगा। सो दैट इज़ नॉट आवर एक्चुअल आंसर। ओके, सो फाइनली हमें एक्चुअल आंसर फाइंड करना है, वो हमें IFA के इक्वेशन पे से मिलेगा। ओके, थैंक यू।